کورونا کے تدارک کے لیے پیکج، طبی آلات کی خریداری، حفاظتی لباس اور طبی شعبے کے لیے 75 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کل وفاقی اخراجات کا تخمینہ 7,137 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ اس طرح بجٹ خسارہ 3,437 ارب روپے تک رہنے کی توقع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام لائیو ود نصر اللہ ملک کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ آپ شام سے مختلف ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بجٹ میں کیا چیزیں نہیں پیش ہوئیں اور کیا ہونی چاہیے تھی۔ اس سے متعلق مکمل آپ کو آگاہی مل بھی چکی ہوگی، لیکن رات کے اس پہر میں ہم نے کوشش کی کہ اس بجٹ کو مکمل طور پر کم از کم تفصیلاً کچھ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ بتایا جا سکے کہ اس بجٹ میں کیا ایسا بہتر ہوا ہے جو ماضی میں بہت کم دیکھنے میں آیا، یا ماہر معاشیات ہمارے ساتھ ہوں گے، مزید ان کی اچھی سجیشنز کیا ہیں یہ جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ چند چیدہ نکات کی بات کروں جو مجھے ایسا لگا کہ گزشتہ بجٹس میں اتنا زیادہ اس کو امپورٹنس نہیں دی گئی تھی۔ 71 ارب 37 ارب کا یہ وفاقی بجٹ پیش کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے کرونا ریلیف یعنی پبلک انٹرسٹ کے سلسلے میں کیا چیزیں ہیں۔ بجلی اور گیس کے مؤخر بلوں کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے گئے، یومیہ اجرت کمانے والوں کے لیے 200 ارب روپے، کورونا وبا سے متعلق 61 آئٹمز پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی، کورونا تشخیصی کٹس اور ریڈی ٹو یوز سپلیمنٹری فوڈ پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی، غریب اور کمزور خاندانوں اور پناہ گاہ کے لیے اسپیشلی ان حالات میں پناہ گاہ کے لیے 150 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نئی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اب جو تاجروں کی مانی گئی ہے جہاں تک 50,000 نہیں 1 لاکھ کی خریداری پر شناختی کارڈ دکھانے کی شرط لاگو ہوگی۔ پچھلا پورا 1 سال ہم نے اس میں کافی پروگرام بھی کیے ہیں۔ فنکاروں کی مالی امداد کے لیے جی ہاں آرٹسٹ پروٹیکشن فنڈ 25 کروڑ سے بڑھا کر 1 ارب کر دیا گیا ہے۔ احساس پروگرام کو 187 سے بڑھا کر 208 ارب کر دیا گیا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے مختص رقم کو 59 ارب سے بڑھا کر 64 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ یکساں نظام تعلیم، جی ہاں وعدہ تھا، یہ منشور کا حصہ ہے۔ پی ٹی آئی کی مدرسوں کو قومی دھارے میں شمولیت، جس کو ہمیشہ کہتے ہیں ڈپرائیوڈ رکھا جاتا ہے، ان کے لیے اور دیگر تعلیمی اصلاحات کے لیے 5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یعنی منشور پر عمل کرنے کی بات اور تجاویز بھی ساتھ ہیں۔ یہی نہیں، تحقیق، مصنوعی ذہانت، روبوٹکس، آٹومیشن، خلائی ٹیکنالوجیوں کا یہ فواد چودھری صاحب کی منسٹری کے لیے 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صحت کے لیے 20 ارب کی تجویز ہے اور ساتھ پبلک انٹرسٹ کے لیے آٹو رکشا، موٹر سائیکل رکشا اور 200 سی سی تک کی موٹر سائیکل پر ایڈوانس ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سا ایسا کچھ ہے جو ہونا ابھی باقی تھا۔ یہی بات جان لیتے ہیں کہ کیا ایسی سجیشنز ہو سکتی ہیں، ماہر معاشیات اس سے کس حد تک مطمئن ہیں۔ یہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مرزا اشتیاق بیگ صاحب ماہر معاشیات ہیں، کاروباری شخصیت ہیں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے عہدیدار ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر اکانومسٹ ہیں۔ ظفر موتی والا صاحب ماہر معاشیات، کاروباری شخصیت، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر شاہد صاحب سب سے پہلے گفتگو کا آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ بجٹ کو غور سے پڑھا سنا، موجودہ حالت میں اس سے بہتر بجٹ پیش کیا جا سکتا تھا؟ موجودہ حالات کے مطابق یہ بجٹ ہے ہی نہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کی 2 وجوہات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حکومت کو جو معیشت ورثے میں ملی تھی 30 جون 2018 کو، اس کے بعد بیشتر معاشی اشاریوں میں مالی سال 2019 میں خرابیاں آئیں، کم سے کم 9 اشاریے فردر خراب ہو گئے۔ ٹھیک، اس کے بعد فروری 2020 تک جب کرونا نہیں تھا، جب بھی بیشتر معاشی اشاریے خراب تھے۔ اس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ جب آپ نے اس حقیقت کو ادراک ہی نہیں کیا تو پھر اس کو خرابیوں کو دور کرنے کی آپ نے کوشش ہی نہیں کی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ابھی آپ کے پاس آ رہا تھا کہ دیکھیے ایف ڈی آر کے جو ریونیوز ہیں، اگر اس میں جو صوبوں کا حق ہے قانون کے تحت تو وہ آپ نے ان کو ادا کر دیا، اس کے بعد جو رقم بچتی ہے اس سے تو آپ کا قرضوں پر سود ہی ادا نہیں ہو سکتا، تو باقی ملک کیسے چلے گا؟ پھر آپ نے ایک فگر دی ہے گراس ریونیوز آف دی فیڈرل گورنمنٹ، اس میں سے اگر آپ صوبوں کا حق نکال دیں تو اس کے بعد جو رقم بچتی ہے اس سے دفاع اور سود کی رقم ہی ادا نہیں ہو سکتی، بڑا خسارہ آ رہا ہے۔ تو باقی جو چیزیں ہیں، باقی ملک کے جو اخراجات ہیں وہ کیسے چلیں گے، یہ ایک بنیادی چیز۔ دوسرے کہ جب کورونا پاکستان میں پھیل گیا، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تھا روزگار، کیونکہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، تو ان کو روزگار کی فراہمی کے لیے اگر کوئی منصوبہ تھا جس میں کہ بجٹ سے ایک پیسہ بھی نہیں خرچ ہوتا، اس کے لیے انہوں نے کوئی چیز اس میں مختص نہیں کی۔ دوسری بات یہ تھی کہ پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب نے انتخابات سے کچھ پہلے یہ کہا تھا کہ ہم 10 نکاتی ایک حکمت عملی لے کے آ رہے ہیں۔ بالکل، اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ 100 دن کے اندر، اقتدار میں آنے کے 100 روز کے اندر
हम अदल पर मबनी पॉलिसी टैक्स लाएंगे, यानी वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत दस्तावेजी बनाई जाएगी। यही बात उन्होंने 2023 में भी की थी, जो सूबे में केपी में उस पर अमल नहीं किया था। मैं अगर ये कहता हूँ, अगर ये आप नहीं करते तो पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। तो मैं एक टेस्ट केस बताता हूँ। उनका कहना यह था कि हम 100 दिन के अंदर हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे और मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे। वो करें या नहीं करें, सिर्फ अपनी काबीना से पास करा के दिखा दें। अगर आपकी काबीना ही उसको पास करने के लिए तैयार नहीं होगी, आपकी केपी की और पंजाब की काबीना उसके लिए तैयार नहीं होगी, तो फिर मईशत की बेहतरी के दावे करना बिल्कुल बेईमानी हो जाता है, क्योंकि आप किसी भी चीज पर अमल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था हम लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में कभी एमनेस्टी में इतनी सस्ती छूट नहीं दी गई जो इस हुकूमत ने दी। यानी प्रॉपर्टी पर 30% दे दें, बिल्डिंग पर वो माफ हो जाएगी। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जनाब, जो इस बजट में आना चाहिए था वो ये था कि जिन लोगों ने उससे फायदा नहीं उठाया, हम उनसे कानून के मुताबिक निपटेंगे। और उनकी तफसीलात रिकॉर्ड में मौजूद हैं, हुकूमत के पास मौजूद हैं, हुकूमत के दस्तरस में है। सिर्फ एक मिसाल दे दूं, बिल्डिंग है, आपको पता है ये खड़ी है, चोरी के पैसे की है और उससे फायदा नहीं उठाया। एक आदमी ने कौमी बचत स्कीमों में 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, रिटर्न में डिक्लेयर किया मेरे पास कुछ नहीं है, तो जाहिर है कि 1 करोड़ चोरी का है। तो क्या ये नहीं हो सकता कि नेशनल सेविंग भी एक प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में जैसे शहजाद साहब बैठे हैं, एक आदमी बैठा हो, सबको खत लिख दे कि जनाब ये आपका 1 करोड़ रुपया पड़ा है कौमी बचत में, ये आपने डिक्लेयर नहीं किया, एमनेस्टी से भी फायदा नहीं उठाया, अब आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आप इससे टैक्स न दें। तो मैंने एक फिगर निकाली है रिसर्च में, करेक्ट इसकी जिम्मेदारी मेरी है। 900 अरब रुपया इससे हुकूमत को वसूल होता, जिसको आप तालीम और सेहत पर डाल देते। अब ताकतवर तबकों के दबाव की वजह से, और एक पीटीआई के सेनेटर ने एक प्रोग्राम में तस्लीम किया था कि जी हमारे ऊपर प्रेशर आ जाता है, हम क्या करें। तो अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि बजट में दूसरी माशी पॉलिसियां बनाई जाएंगी ताकतवर तबकों के नाजायज मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो फिर तो कोई चीज़ बेहतरी नहीं आ सकती। मगर दूसरी जो तकलीफ दे बात है वो मैं आपको बता दूं कि कानून को तोड़कर आप आवाम को कुचलते हैं। उसका रिकॉर्ड पर मैं आपको बता रहा हूँ, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस जो है 26A और 40A4, उसमें ये लिखा है, ये स्टेट बैंक की जिम्मेदारी है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। उसमें ये लिखा है कि सूदी बैंकों में जो खाते हैं वो नफा नुकसान में शिरकत पर हैं और उसका ताल्लुक शरअ सूद से नहीं है। लेकिन जब स्टेट बैंक ने सूद कम की, उसी दिन स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर इशू कर दिए, उसके मुताबिक 21 मिलियन 2 करोड़ 10 लाख खातेदार जिनके उन्होंने 7 अरब रुपया बैंकों में रखा हुआ है, उनकी शरह मुनाफा फरवरी में थी 11.25, आपने उसको 6.5 कर दिया। ठीक है, ये तो कानून के खिलाफ है कि वो तो नफा नुकसान है। और 26A और 40 रखा हुआ है, तो 340 अरब रुपए उन लोगों से जिन्होंने बचत रखी थी बैंकों में, गरीब लोग भी थे, खींच लिए। और उसका फायदा किसको दिया? 51,000 बोरोवर्स, उनकी शरह सूद आपने कर्जों पर कम कर। तो अगर ये पॉलिसियां अपना ली हैं कि कानून तोड़कर गरीब को कुचला जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं दीगर शुरका को भी शामिल कर लेता हूँ। नेवर टू लेट, जो सजेशंस आपने दी हैं शायद अभी भी वक्त है कि हुकूमत इसको अडॉप्ट कर ले। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब को गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। मिर्जा साहब, आप खुश हैं कि 2020-21 में कोई नया टैक्स नहीं लगा? सताइश करनी चाहिए गवर्नमेंट की? हाँ सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि मैं आज जो बजट अनाउंस हुआ उस पर कोई तबसरा करूँ, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि लास्ट जो बजट था उसके क्या अहदाइफ जो थे वो अचीव किए गए हैं। हमारी जीडीपी जो लास्ट बजट के अंदर आई है, जो कल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया प्राइम मिनिस्टर साहब को, 3 फेडरल मिनिस्टर्स ने पेश किया, उसमें ये था कि जो जीडीपी का टारगेट था जो 3.3 था, वो हमने अचीव कितना किया है, वो माइनस के अंदर 0.4% जो है वो चला गया है। हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी, जो बैकबोन है हमारी, जिसके अंदर तमाम ऑटो इंडस्ट्रीज आती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आती है, इसका जो टारगेट था जी वो हमारे पास 2.3 था और ये माइनस में गया है, माइनस 2.64% पे चला गया। सर्विसेज सेक्टर जो था, जिसका टारगेट 4.8% रखा गया था, वो माइनस के अंदर चला गया है 3.4% के अंदर। सिर्फ जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, जिसका 3.5% टारगेट था, उसने टारगेट कुछ सेटिस्फैक्ट्री रहा है, जो 2.7% उन्होंने अचीव किया है। अब मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल और देना चाहता हूँ कि जब 2018 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को भेजा गया, तो उस वक्त
जो 5.5% GDP पाकिस्तान ने अचीव की थी। लास्ट बजट के अंदर क्या हुआ कि वो GDP 5.5% जो थी वो कम होकर 1.9% के ऊपर आ गई, और इस साल आपने देखा कि वो GDP जो थी वो -0.4% पे चली गई। आज के बजट में ये अनाउंस किया गया कि इंशाल्लाह अगले साल हम 2% GDP जो है वो अचीव कर लेंगे, जबकि मौजूदा हालात के अंदर और जो फिगर्स आज अनाउंस किए गए हैं उसके अंदर जितनी भी मुआशी माहिरीन ये कह रहे हैं, IMF ये कह रहा है, वर्ल्ड बैंक ये कर रहा है कि पाकिस्तान का अगले साल जो GDP रहेगी वो भी -1.5% में रहेगी। तो कहने का मकसद ये था कि वो जो 2018 में 5.5% की GDP की हम बात कर रहे थे, अब वो गिरते गिरते आप देख रहे हैं कि अगले साल तक और उसके बाद जो है -5.5% के अंदर चली जाएगी, जो 5% की ग्रोथ 5.5% की GDP आई थी। अब आ जाइए हमारे रेवेन्यू का टारगेट जी। इस बार 1000 अरब हमने रेवेन्यू जो है लेस किया है, और इस बार हमने किया कि लास्ट ईयर तो करप्ट हुकूमत पे डालते थे, इस बार हमने कोरोना के ऊपर तमाम मलबा डाल दिया है कि जो परफॉर्मेंस पुअर रही है। मैं सिर्फ ये मालूम कहना चाहता हूँ कि अगर जनाब कोरोना तो मार्च के अंदर सरफेस हुआ है, हमारी 9 मंथ की जो परफॉर्मेंस थी, चाहे वो एक्सपोर्ट की थी, चाहे वो कलेक्शन रेवेन्यू की थी, सबकी थी, वो कहाँ डिसअपियर हो गई, वो तमाम की तमाम जो थी वो किसी ने नहीं पूछा मार्च से। और दूसरी बात यह है कि जब हम बजट की बात करते हैं तो ये 12 महीने का फिगर्स नहीं है हमारे पास, इसके अंदर मेरे ख्याल से सिर्फ 1 या 1.5 महीना जो है जो इसके अंदर आ रहा है वो कोरोना जिससे मुतासिर किया है। उसके अलावा अगर आप हमारी रीजनल कंट्रीज को देखें तो वहाँ पे ये नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं आई है, मगर इस बार कोरोना पे ये डाल दिया गया है। अब आज के बजट के ऊपर जो हदायत रखे गए हैं 3900 बिलियन के, जो कि लास्ट ईयर जो थे वो 5.5 बिलियन के थे, जिसमें 1000 बिलियन की कमी महसूस हुई है। नून की हुकूमत जब गई थी तो उसमें उस वक्त 4000 अरब जो था वो टैक्स कलेक्शंस हुआ था, जिसमें अब कमी वाकई उसके अंदर हो रही है। दूसरी बात देखिए, इस बार जो सबसे अच्छा सेक्टर जिसने परफॉर्म किया वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुकूमत इस बार डैम के लिए भी कुछ अमाउंट मुख्तसर करेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जो अगले आने वाले साल के अंदर पाकिस्तान की मईशत को थोड़ा बेहतर कर सकता है। इस वक्त राइस जो है हम $2 अरब के राइस एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। कॉटन जो थी वो हमारी कम हो गई है प्रोडक्शन उसकी। अगर हम इस बार इंसेंटिव्स को जो है किसानों को देते और उनको इंकरेज करते, उनकी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि ट्यूबवेल जो है उसके अंदर एनर्जी जो है उसकी बहुत ज्यादा उनके पास कॉस्ट आती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ करते, हर साल इंक्लूडिंग नून की हुकूमत भी जो थी वो डैम के लिए कुछ अमाउंट। ठीक है अब ये आपकी तरफ से सजेशंस आ गई कि ये होना चाहिए था। जफर साहब को शामिल करते हैं। जफर मोतीवाला साहब, कारोबारी तबका वो तनकीद नहीं कर रहा जिस तरह गुज़िश्ता सालों में हमने देखी बजट पे। क्या कुछ ले दे पे बात हुई है, कुछ इनकी मानी भी गई है? क्योंकि मुझे इतना तो पता चल गया है कि वो कम से कम वो शनाख्ती कार्ड की शर्त जो है वो 1 लाख रुपए तक पहुंच गई है। अब 50,000 पे शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाना पड़ेगा। नहीं, देखिए अभी तो ये इसकी पूरी रिसर्च होगी, हमारे टीमें बैठेंगे अलग अलग एरिया में, चेंबर की, स्टॉक एक्सचेंज की, और वो देखेगी कि भाई कहाँ पर प्रोटेस्ट होगा, कहाँ पर नहीं है। पर एक बात जो बिजनेसमैनों को कही गई थी ना कि रिलीफ बजट है, वो रिलीफ बजट नहीं है। इसमें इनको गवर्नमेंट को बेस्ट जो बेनिफिट मिला कि हम लोग 70% पहले सोचते थे बिजनेसमैन के इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, वो अब हो गया है 85% हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे ऑयल की प्राइसेस घटे हैं तो उसका बिल जो कम हुआ है उसका बेनिफिट पहले 9 महीने में अगर 100 रुपए से, यानी ये समझ लें कि $50 का जब बैरल था, वो बेनिफिट मिला है। और ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, यानी हमारा एक्सपोर्ट तो कम हुआ है लेकिन हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हुआ है। एक तो ये ऑयल हुआ, और दूसरा लोगों ने खरीदना खुद ही छोड़ दिया, क्योंकि इकोनॉमी स्लो डाउन की खबरें ये हुकूमत के आते ही आ गई थी। जब असद उमर साहब ना कर रहे थे कि मैं जाऊं IMF के पास कि नहीं जाऊं, तो उसी टाइम आइडिया हो गया था बिजनेसमैनों को कि भाई कुछ जो इसाक डार साहब ने, अपना इश्तियाक बेग का दोस्त है, उसने जो हिसाब किताब दिए हैं वो थोड़े गलत दिए हुए हैं। तो वो चीजें देखते हुए
लोगों ने बाइंग के ऑर्डर्स और वो सब अपने जो लोकल बिजनेसेस थे उनको बंद कर दिए थे। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को एक फायदा तो ऑयल प्राइसेस का हुआ है और इंपोर्ट बिल का हुआ है। अब जो रिलीफ की बात है वो कहीं पर नहीं दिया गया। बिजनेसेस को, कोई इंडस्ट्री को इंटरेस्ट रेट आपके सामने किस तरह कम किए गए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पहले कोई 54 दी गई, फिर 12 ने दिए गए, फिर 1.5 रुपया दिया गया। हमें फौरी तौर पर जीरो इंटरेस्ट रेट की बातें जब दुनिया में हो रही थी तो हम ये समझ रहे थे कि 4-5% पर आ जाएगा। लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और जो बाहर है, जो अनलिस्टेड है, वो कर्जों पर चलती है बैंकों के, वो बड़ी इंडस्ट्री है। तो उनको तो मसला ये था कि इंटरेस्ट रेट लो हो ताकि ये जॉब जो जा रहे हैं लोगों के वो ये बचा सके। दूसरा ये कि अभी आपके 4 जो मेन फिगर हैं उसमें बहुत बड़ा तादाद है। एक तो इम्पोर्ट बिल का जो अब इन्होंने प्रिसीव किया है, दूसरा एक्सपोर्ट का जो हम सिर्फ कॉटन का टेक्सटाइल करते हैं, तीसरा हमारा जो रिमिटेंस है क्योंकि वहां पर भी नौकरियां बाहर पाकिस्तानियों की जा रही हैं, और चौथा जो है कलेक्शन जो सबसे बड़ा है। जफर भाई ये बता दे फिर इसको गरीब दोस्त बजट क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि पूरा मुल्क गरीब हो गया है तो गरीब दोस्त ही होगा ना। पूरा मुल्क अगर एक साथ गरीब हो जाता है, आप एक कंट्री जो पहले टाइगर से झगड़ा, शाहिद साहब हंस रहे हैं, वो जो अपना टाइगर बनने का था, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, उन सब से लड़ने का था, वो ऑटोमेटिकली गरीब हो गया है। उसकी 4 फिगर्स आप देख लो। आज के दिन भी मार्केट 164 रुपए से ऊपर चली गई है डॉलर की पूरे एरिया में। अब लोगों कहते हैं कि नहीं ईरान की करेंसी देखो, मैं ईरान की करेंसी कभी नहीं देखूंगा क्योंकि वो आइसोलेटेड इकोनॉमी है। हमारी करेंसी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया से वर्स्ट है, यानी ये समझ लो आधे भाव में हो गई है। तो आप ऑटोमेटिक गरीब हो गए ना। आप अगर एक 50 करोड़ की पार्टी हो तो आप समझ लो 30 करोड़ की हो गई हो। तो ये जो फिगर्स हैं इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो लोग अभी गुस्सा नहीं कर रहे वो गवर्नमेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि अगर ये जो कह रहे हैं कि कोविड-19 खत्म हो जाएगा और ये फिगर्स को 70% भी अचीव कर लिया ना तो लोग शुक्र करेंगे। जैसे अभी कई चैनलों पर हमारे दोस्त ये बोल रहे थे कि अगर माइनस जीडीपी की जगह 0 लेवल पर भी आ जाए ना। सर आपको ये पैसे मुकम्मल लग रहे हैं, जरूरत के मुताबिक लग रहे हैं? 20 अरब रुपए जो कोविड के लिए, तदारुक के लिए और इसके तशखीस के लिए, किट्स के लिए जो रखे गए हैं, मुनासिब है मौजूदा हालात में कि ज्यादा होने चाहिए थे? मुझे तो लगता है कि हम तीनों जो दोस्त बैठे हुए हैं वो 1 अरब रुपया जो एक्टर्स को मिलते हैं उसमें अगर आ जाए तो भी बड़ी बात। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आते हैं टैक्स वसूलियों के आदाब की तरफ। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? इस ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर शाहिद साहब, आपको ऐसा लगता है टैक्स वसूलियों का जो हदफ है 4,963 अरब रुपए रखा गया है, हमारा ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड आपने देखा है कि वो मुमकिन हो पाएगा इस साल में ये हदफ पूरा हो सके? इस बार पहली बार? देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से बता दूं कि चंद महीने बाद आप देखेंगे कि इस बजट को, इस हदफ को डाउनवर्ड कर दिया जाएगा। ये नहीं, इम्पॉसिबल है, हुकूमत को भी पता है और उन्होंने जानबूझ के इस वक्त IMF को बताने के लिए किया है। बाद में IMF की मर्जी से इसको कम कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसको पोजीशन को समझना है तो इश्तियाक बेग साहब ने जो बातें की थी उसकी मैं 2-3 और इजाफा कर दूं ताकि आपको सही सूरत हाल पता। सर थोड़ी तस्हीह कर दे हमारी, IMF की मर्जी से इसको कम किया जाएगा? IMF की ख्वाहिश नहीं होगी? नहीं, देखिए ना, IMF को जब आप ये बताएंगे कि जनाब हम ये ताकतवर तबकों पर टैक्स नहीं लगा सकते, कोरोना का मसला है, हुकूमत को गिरने का खतरा है, अगर ये टैक्स लगाएंगे तो आपके सारे निज़ाम को कोलैप्स करना चाहते हैं, क्या आप माशी बुरान को सियासी बुरान में कन्वर्ट कराना चाहते हैं? तो पिछले साल भी जो साल खत्म हो रहा है, IMF ने 3 दफे उसको डाउनग्रेड किया था, अब के भी कर देंगे तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा अगर ये हासिल भी हो जाए तब भी कोई मकसद हासिल नहीं होगा। लेकिन ये इम्पॉसिबल है। IMF की इजाजत से मजबूरी में वो आपको कंसेंट देंगे कि आप इसको कम कर दें। मगर जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम खड़े कहाँ पर। देखिए, अब कुछ बातें तो GDP ग्रोथ रेट की बताई थी, मैं आपको एक बात 2018 में जो PMLN का आखिरी साल था, टोटल बैरूनी सरमायाकारी आई थी $5,700 मिलियन और 2019 में आई $250 मिलियन। जरा इस पर गौर तो कर लें, 5,700 से 250 पर आ गया। चोर डाकू है ना, मईशत तबाह हो गई, बैंकरप्ट हो गए, दिवालिया हो गई। ये नहीं होता है। और मैं दिवालिया क्यों नहीं थे मैं आपको बता दूं। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हलफ उठाया
उस दिन स्टेट बैंक के रिजर्व थे 10.2 अरब डॉलर रिकॉर्डेड। उसके 15 माह के बाद नवंबर 19 में जब इस हुकूमत ने इक़्तिसादी मुआवजे दिखा के मईशत को बहाल कर दिया था, हमारे रिजर्व थे 9.1 अरब डॉलर, यानी गिर गए और 10 अरब डॉलर के कर्जे बढ़ गए। तो कर्जे 10 अरब डॉलर बढ़ गए, रिजर्व गिर गए और दिवालिया से मईशत बहाल हो गई। तो जब आप इस किस्म के नारे लगाएंगे तो दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है? पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं, कॉर्पोरेट कल्चर के लोग हैं, जफर मोदी साहब बैठे हैं, इन्होंने IBA से डिग्री ली है, तो ये सब लोग तो समझ रहे हैं ना ये क्या हो रहा है। अवाम अगर ना भी समझें। तीसरी बात मैं आपको अगर बताऊं तो आप हैरान होंगे, इस हुकूमत के आने से पहले जो 10 बरस थे जिसकी तहकीकात हो रही है, कर्जों में इजाफा, तो बैरूनी कर्जों में इजाफा हुआ था 4.9 अरब डॉलर सालाना, और इनके दौर में इजाफा हुआ है 8.5 अरब डॉलर सालाना। तो कोई मुझे ये बताए कि इजाफा कैसे हो गया? तो उसका जवाब ये देते हैं कि जी हमने कर्जे अदा कर दिए। अब मैं खुदा के लिए, मैं कोई एक मैट्रिक पास आदमी में समझता है कि अगर आप 100 मिलियन डॉलर का कर्जा लें और 100 मिलियन वापस कर दें तो कर्जे बढ़ा नहीं करते। आपने क्या किया है कि 30 अरब डॉलर के कर्जे लिए, 15 अरब डॉलर के वापस कर दिए और 15 अरब डॉलर बढ़ गए, जो कि 8.5 अरब डॉलर सालाना बनते हैं, 4.9 अरब डॉलर 10। लेकिन अगर आप मजबूरी कर्जों पर अगर जाएं तो इससे ज्यादा खराब सूरत हाल है। यानी 10 वर्षों में इजाफा हुआ 2300 अरब, इनके दौर में इजाफा हुआ 7,300 अरब रुपए सालाना। तो ये जो कुछ हो रहा है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, इसकी वजूहात का तायुब नहीं करेंगे, इन खराबियों को, और मैं एक दर्जन गिरा सकता हूँ लेकिन मकसद कोई नहीं है, तो आप इन खराबियों को देखने के लिए बजट में प्रोविजंस नहीं लाते और ऐसे दावे करते हैं जो होने वाले ही नहीं है। अभी आपको रुपए की कदर का पता देखिए, आज आया कि जी हमारी स्टॉक एक्सचेंज को जो है बेहतरीन करार दिया गया दुनिया की। अरे भाई, जिस दिन इमरान खान साहब ने हलफ उठाया था उसके बाद कई हजार अरब रुपए का लोगों को मार्केट कैपिटलाइजेशन में नुकसान हो गया। आप वो कहानी सुना रहे हैं कि जी हमारी दुनिया की बेहतरीन थी। तो मैं कहता हूँ इस बात को छोड़ें, कई हजार अरब रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन में डूबे हैं इमरान खान साहब के बहाने से आज तक। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मिर्जा इश्तियाक साहब आप बताइए, क्या ऐसा लगता है कि मौजूदा हालात देखते हुए, कारोबारी तबके के हालात देखते हुए, कोरोना और फिर जो बकौल डॉक्टर साहब के पूरा 2 साल से यही हो रहा है, क्या कोई नया टैक्स लगाया जा सकता था, मुमकिन था कि कोई ऐसी जगह पे कुछ सजेस्ट करेंगे कि यहाँ टैक्स लगा दिया जाए तो बेहतर था? मैं इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दूं, एक चीज़ थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर शाहिद साहब, जो उन्होंने बतलाया, देखिए लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, कर्जे लेना कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया का सबसे मकरूज कंट्री इस वक्त जो है वो अमेरिका है, जिसने $1 ट्रिलियन जो है वो चाइना को देना है, $1 ट्रिलियन जो है उसने जापान को देना है। मगर कर्जे अगर आप ले रहे हैं और इसके कारखाने लग रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स के अंदर जा रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ समझी जाती थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब गए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने जो कर्जे लिए वो सबसे ज़्यादा जो हुए हैं उसके अंदर वो हमारे प्रोजेक्ट्स थे, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स। 12,000 मेगावाट एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगे, 2,000 किलोमीटर्स के जो थे वो हाईवेज और मोटरवेज जो तमाम चीज़ बनी। अब हमने जो इस 2 सालों में जो कर्जा लिया है, आप मुझे सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नाम बता दें कि एक नया प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर आया हुआ, वो कोई इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं आया। अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है, जिसको डिजास्टर हुआ है, जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो माइनस में चली गई है, जो कि हमारा एक रनिंग हॉर्स हुआ करता था, उसकी वजह ये हुई है कि बिजनेस इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलिस्ट पूरे साल ये रोते रहे कि खुदारा 13.25% इंटरेस्ट रेट आप नहीं करें। ये 13.25% के ऊपर ना हम जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, ना इंडस्ट्री चल सकती है, ना इसके अंदर एक्सपेंशन हो सकता है, और पूरा साल आपने इसको ले लिया। और आखिर में 2 महीने पहले सडनली अब ख्याल आया है गवर्नर स्टेट बैंक को, और उन्होंने जाके इसको रिड्यूस किया है। अगर पाकिस्तान की आप हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान ने तरक्की उस वक्त की है जब हमारा इंटरेस्ट रेट जो था बहुत कम था। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर, नून की हुकूमत ने जो 5.5% GDP अचीव की है, वो सिर्फ इस वजह से की थी कि उस वक्त 5 या 6% जो था वो इंटरेस्ट रेट चल रहा था। कंज्यूमर फाइनेंसिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा जो थी वो जोरों पे थी। पाकिस्तान ने सबसे बड़ी तरक्की जो की थी वो शौकत अजीज़ के वक्त में की थी, जब 4%
हमारा इंटरेस्ट रेट था और हमने 7.5% GDP जो थी हमने हासिल की थी। देखिए इस बजट के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब मैं आने वाला वक्त देख रहा हूँ, वो गए हुए साल से आने वाला साल मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे नज़र आ रहा है, जिसके अंदर हमारे जैसे अभी जफर साहब ने मेरे भाई ने कहा है कि रेमिटेंसेस के अंदर कोई 20% हमारी कमी वाक़या हो रही है। 60,000 ले ऑफ कर दिए हैं लोग जो इस वक्त यूएई के अंदर बैठे हुए हैं। इस वक्त 30,000 लोग जो है सऊदीया में बैठे हुए हैं। कतर वाले जो हैं वो तकरीबन 20,000 उन्होंने ले ऑफ कर दिया है। जब ये लाखों लोग वापस आएंगे हम इन्हें कहाँ अकोमोडेट करेंगे? और आपने रादर देन इस वक्त यूरोप और अमेरिका जो है वो अपने लोगों को घर बैठा के सैलरियां दे रहा है। हमने आखिरी वक्तों में पाकिस्तान स्टील मिल के जो लोग थे उनको भी ले ऑफ हमने करके इस वक्त कर दिया है। क्या ये टाइमिंग सही है? मैं ये नहीं कहता कि आप इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं करें, प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए था, मगर हमें वो मॉडल अख्तियार करना चाहिए था जो हमने कराची इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अपनाया, जिसके अंदर ये क्लॉज था कि हम ले ऑफ नहीं करेंगे, या हमने PTCL के अंदर अपनाया। आज ये दोनों इदारे जो हैं इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है, मगर हमने इस तरह का और हमने उनको इस वक्त में ले ऑफ कर दिया। मेरे ख्याल से इस वक्त हुकूमत ये कहती है कि 5 से 6% जो है हमारा जो है जॉबलेस लोग चल रहे हैं। मैं कहता हूं ये 12% से ज्यादा। अच्छा जफर साहब, मैं जफर मोतीवाला साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं। सिचुएशन मैं सर बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। सर जफर मोतीवाला साहब, अब ये बताइएगा कुछ ऐसी ड्यू पेमेंट्स हैं मालियाती इदारों की जिसमें पैरिस क्लब भी शामिल है, IMF भी शामिल है, एशियन तरक्याती बैंक भी, इन्होंने हमारी ड्यू पेमेंट्स को डेफर किया है, डेट्स को डेफर किया। क्या इसका कोई फायदा होगा या आपका इस बजट में लगता है कि इसका कोई फायदा उठाने की कोशिश की गई है? अब आप आए हो $5 बिलियन के क्वेश्चन। अब हम लोग जो है ये इसका कोविड का फायदा उठा सकते हैं कि मेरी परदादी बोलती थी कि हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। क्या अल्हम्दुलिल्लाह हम उन मुल्कों में आएंगे जो पूरी दुनिया हमारे ऊपर रहम करेगी और वो इंटरेस्ट रेट असल रकम लेट करेगी, चाहे वो IMF की आंटी हो, चाहे वर्ल्ड बैंक की हो, जो भी है वो जो है कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट देंगे। अब यहाँ पर ये है कि पेरिस क्लब, एशियन डेवलपमेंट और ये IMF तो रेडी हो गए। सऊदीया ने भी अपना कर्जे के लिए बात कर ली है और एक और अभी UAE से बातचीत चल रही है कि वो भी डिफर कर दे। तो ये जगह है जहाँ पाकिस्तान को बेनिफिट दुनिया देगी, लेकिन इस बेनिफिट का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो लोकल इंडस्ट्री है, हम लोग जो एक एंटरप्रेन्योर थे, ताजिराना सलाहियत रखने वाला मुल्क था, उसको आप इस पर फिक्स कर दो कि भाई मंथली आकर ले लो पैसे। आपको पता है बेनजीर फंड जब आया तो बेनजीर फंड ने इंटीरियर सिंध को काम करने से रोक दिया। वो अपना कार्ड दिखाए, पैसे ले आओ, बैठ जाने। एक आइलैंड है पैसिफिक में जिसमें लोगों को इतना, उन्होंने फ्रेंच कॉलोनी के अंदर था कि इतना उनको बेकार कर दिया कि वो सिर्फ वहां पर बैठ कर मछली पकड़ रहे हैं, उनको मंथली पैसे आ रहे हैं, उससे उनका खाना पीना आ रहा है और वो बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान को ये बेकार ना कर दे। अगर इंडस्ट्रियां नहीं चली, लोग बेकार होते गए, तो जो इंटीरियर सिंध में कार्ड लेकर रहे, इसी तरह लोग मैं देख रहा हूँ कि नर्सेज, ये वो ड्राइवर्स, ये 12-12 हज़ार रुपए लेकर ये कहते हैं कि हमें काम ही नहीं करना। तो ये बहुत बड़ी खतरनाक बात हो। और ये जो खतरनाक है ना, एक आपकी पूरी जो कौम है ना, वो सुस्त रवि पर चली जाएगी। और ये हो सकता है कि वो जो 1857 पे या ये जो अपना साहब बहादुर ब्रिटिश आकर कब्जा किया, उन्होंने यही देखा कि कौम सुस्त है, कौम को काम ही नहीं करना। आप सत्याजीत रे की फिल्म देखो, शतरंज के खिलाड़ी, पूरा लखनऊ की जो रियासत थी वो काम करने को तैयार ही नहीं थी, सिर्फ शेरो शायरी और कबूतर बाजी पर थी। तो आपको इंडस्ट्रियां चलानी होंगी। देखिए आपका मुल्क जो है ना, मैं बड़ी आपको नाराजगी होगी, दोनों मेरे दोस्त भी हैं, एग्रीकल्चर पर ये मुल्क नहीं चल सकता। आप अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बजट में किसी जगह पे थोड़ी कंजूसी भी की गई है। स्पेशली मुझे मैसेजेस आ रहे हैं सरकारी मुलाजमिन को तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा नहीं किया गया। डॉक्टर साहब आपसे सवाल करूंगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आता हूँ।
वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, सरकारी मुलाजमीन कह रहे हैं हमारी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, 10% भी नहीं किया, हमारी पेंशन भी नहीं बढ़ाई, उनको क्या कहें? देखिए, जितना इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है उसके हिसाब से तो अखलाकी तौर पर हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि कम से कम जितनी अफरात-ए-ज़र बढ़ी है उतना उनको बेनिफिट दें। अगर ये आप नहीं करते तो ये एक्सप्लॉयटेशन के ज़ुमरे में आता है, और एक्सप्लॉयटेशन इन इस्तेसाल, और हमारा आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसमें यह है कि इस्तेसाल की सख्त ममानत। तो अब यही है कि उनको पता है कि जी वो तो फिर उन लोगों को राग़िब करेंगे किसी और तरह से अपनी कमाई बढ़ाएं, तो पाकिस्तान में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो वो रास्ता और खुल जाएगा और उनकी इनएफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो ये गलत फैसला है मेरे हिसाब से, इनको इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, और ख़ास तौर से पेंशनर्स वगैरह जो हैं जिन्होंने बहबूद में पैसा लगाया उनकी शरह मुनाफा भी कम कर दी, माजूर अफराद की भी कम कर दी, तो बेवा की भी आपने कम कर दी, तो गरीबों को इस तरह से ना पूछें। मगर अगर आप इजाजत दें, 2-3 बड़े अहम टॉपिक्स आए थे। मैं सर वो सवाल कर लूं, मैं उन्हीं टॉपिक्स के साथ सवाल करना चाह रहा हूं ताकि ये थोड़ा सा वक्त रह गया, और जितने भी सवाल इस वक्त हमारे पास मैसेजेस की सूरत में आ रहे हैं हम वही पेश कर रहे हैं। इजाजत है आपकी? जी डॉक्टर साहब, कोरोना की वजह से कुछ लोग, बल्कि एक बहुत बड़ी तादाद है, कुछ तो नहीं कहें, जो बेरोजगार हुई है, उनकी रिलीफ के लिए हमें तो कुछ नजर नहीं आया, आपको कुछ नजर आया इस बजट में? देखिए, इसमें तो नहीं है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ, हमारे दोनों दोस्त बैठे हैं, मैं भी एक तजवीज़ 2 मिनट में आपको पेश कर दूंगा कंप्लीट, जिसमें बजट से 1 रुपया होगा, 1 रुपया भी दी जाएगा और लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि 51,000 बोरोअर अकाउंट्स हैं पूरे मुल्क में, उन्होंने 7,000 अरब रुपए के कर्जे लिए हुए हैं। अच्छी बात है, जरूर दें। मैं ये चाहता हूँ कि आप उसमें से 150 अरब रुपए मुख्तस कर दें प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक, आम घरेलू खवातीन जो कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, लाइव स्टॉक सेक्टर में हैं, छोटे किसान हैं, उनको आप जो है वो 200 अरब रुपए का सरमाया फराहम करने की बात करें कर्जे। लेकिन बैंक ये कहता है कि आप जब तक वो इक्विटी नहीं लाएंगे, जब तक हम कर्जा नहीं देंगे, जमानत हमें चाहिए। तो उसका तरीका ये है कि जो एहसास प्रोग्राम है उससे 50 अरब रुपए अलग कर देंगे, और मिसाल के तौर पर एक नंबर कहता है जी मुझे 2 लाख रुपए आप दे दें तो मेरा काम शुरू हो जाए, तो 1.5 लाख रुपए बैंक कर्जा दे और 50,000 रुपया एहसास प्रोग्राम से उसको बैंक इक्विटी डाल दे। उसमें कंडीशन ये होगी कि अगर उसने वक्त पर ईमानदारी से कर्जा वापस किया तो ये 50,000 रुपए तो वैसे ही ये माफ हो जाएंगे, और अगर नहीं दिया तो हम पूरा कर्जा वसूल करेंगे। इस तरीके से अगर आप लाखों लोगों को रोजगार देते हैं तो ये वाहिद तरीका है, निजी शोबा नहीं दे सकता, तो ये बात का यही तरीका है। अगर इस पर अमल करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, मुझे ये जानना है, और ये मैं सवाल कर लेता हूँ मिर्जा इश्तियाक बेग साहब से। मिर्जा इश्तियाक बेग, कारोबार खुश है कि अब शनाख्ती कार्ड की शर्त 1 लाख रुपए की लिमिट तक कर दी गई है, आप समझते हैं अब काबिल कबूल होगा? देखिए, ये छोटे ट्रेडर्स थे। देखिए, जैसे अभी शाहिद साहब ने भी आपको ये बतलाया कि पाकिस्तान की एक बड़ी इकोनॉमी जो है डॉक्यूमेंटेड है, हम खुद इस फेवर के अंदर हैं कि उसको जी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, और हुकूमत ने अच्छा एक फैसला किया है, क्योंकि ये टगा बार चल रही थी और पूरे साल ये चलती रही, जिससे इकोनॉमी के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ा। क्योंकि देखिए, इस वक्त ये जो हमारे टाइमिंग्स ऐसे हैं कि हमें बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, हम ज़्यादा सख्ती इस वक्त करेंगे। ऑलरेडी इकोनॉमी इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है, पाक रुपीस हमारा दोबारा डिवैल्यूएशन जो है वो शुरू हो गई है, इसकी तमाम चीज़ें, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कोई नहीं आ रही है। हुकूमत ने ये कहा है कि इस बार 100 बिलियन रुपीस जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहा है प्राइवेटाइजेशन से। मेरे ख्याल से ये टाइमिंग्स ऐसे हैं कि तमाम ममालिक जो हैं इस वक्त, बाहर की हुकूमतें जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सब शाई हुए हैं इस वक्त, और वो हमारे पास आके इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करेंगे। हमने जो कुछ भी करना है इस वक्त अपने रिसोर्सेज से यहाँ पे करना है। मुझे उम्मीद है इस बार के, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट रेट्स के अंदर अब कमी आई है। उसके बाद दूसरी, हुकूमत हमेशा एक चीज़ को जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है कि जी हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट बिल के अंदर अपनी कमी ला दी है। देखिए, इम्पोर्ट बिल के अंदर कमी लानी अच्छी बात है, मगर मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि इम्पोर्ट बिल में वहाँ पे ले आई जाए जो लग्जरियस आइटम हों। इम्पोर्ट करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। हमारे पास बांग्लादेश की मिसाल है कि जो 1 किलो कॉटन भी प्रोड्यूस नहीं करता, पूरी दुनिया से कॉटन, यान, कपड़ा मंगाता है,
और फिर वो 45 बिलियन का वैल्यू एडिशन करके कर देता है। हमारा ये जो कम हुई है हमारी एक्सपोर्ट्स, उसकी एक वजह भी यह है कि जब हमने बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी, इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ा दी, सेल टैक्स बढ़ा दिए, तमाम चीज़ें हो गई, तो उससे क्या हुआ कि हम वैल्यू एडिशन में नहीं जा सके, रॉ मटेरियल हम बाहर से नहीं मंगा सके, और इन तमाम चीज़ों ने मिलकर हमारी जो एक्सपोर्ट्स जो थी उसको भी उसने हमारे डिस्टर्ब किया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार आई होप, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वक्त यह है कि कलेक्टिव विजडम होना चाहिए और कलेक्टिव डिसीजन होने चाहिए। अगर इस वक्त हमको चाहिए कि अपोजिशंस को, बिजनेस कम्युनिटी को, फेडरेशंस को, चैम्बर्स को, सबको मिला के अगर एक बजट तरतीब दिया जाता तो उसके अंदर मेरे ख्याल से बेहतरीन के आसारात होते हैं, मगर इस बार फेडरेशन को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया, बड़े चैम्बर्स को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया। हुकूमत ने एक बजट पढ़ दिया वहाँ पे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ अरसे बाद एक आप देखेंगे, जैसे शाहिद साहब ने भी कहा है, डॉक्टर साहब ने, कि ये रिवाइज बजट जो है दोबारा पेश किया जाएगा, एक मिनी बजट आएगा और उसके अंदर तमाम जितने हदायत जो इस बार रखे गए हैं IMF को, वर्ल्ड बैंक को खुश करने के लिए, उसके अंदर आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी आपने एक जिक्र ये किया कि इस बार इंसेंटिव्स और तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ाई गई। मेरे ख्याल से IMF और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान पे कुछ इस तरह का प्रेशर डाला था कि आप जो हैं इंसेंटिव्स जो हैं इस बार नहीं देंगे, और मेरे ख्याल से ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से, नहीं तो आम तौर पे आप देखते हैं कि गरीबों के लिए, क्योंकि महंगाई जो है वो बढ़ रही है, ठीक, तो उसकी वजह से हमेशा हर साल हमें 5-10% जो है हम इंक्रीज उनकी तनख्वाहों में आगे बढ़ जाते हैं ना। जफर मोती साहब, मेरा आपसे सवाल है, जफर भाई मेरा आपसे ये सवाल है कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वादा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का 50 लाख घरों का, और उस प्रोजेक्ट के लिए 30 अरब रुपए रखे गए हैं, और उसमें अखुवत फाउंडेशन के साथ 1.5 अरब रुपए की रकम मख्तस की गई है। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये रकम काफ़ी है, या आप समझ लें कि बस खत्म हो गया ये प्रोजेक्ट? यानी आपने जो आवाज बंद कर दी कि बस, तो बस यही है कि रकम हो ना। देखिए मुझे भी चलाऊं, मुझे भी शौक है कि मैं कॉन्कर्ड में बैठूं या फर्स्ट क्लास में बैठूं, लेकिन आपको अपनी दुनिया को देखना होगा। वियतनाम की आपको एक छोटी सी खबर दूं, आज से 10 साल पहले वियतनाम में इन्होंने कहा कि हम वो स्पीड ट्रेन चलाएंगे नॉर्थ वियतनाम से साउथ। उनके ऐसे बोली भाई आपके पास पैसे का है, अभी तो स्लो ट्रेन चलाओ, जब आएंगे, जब पैसे आएंगे तो कर लेंगे। आज भी आपके पास जो ट्रेन सिस्टम है, जो रोड का सिस्टम है, वो सब ब्रिटिश टाइम का है। इवन सीवरेज सिस्टम, पूरे पाकिस्तान में सीवरेज सिस्टम उनका ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा का है। अभी से मार्क माय वर्ड, क्या अभी से लेकर ये अगले साल तक कोई भी डेवलपमेंट में जो चीजें, आधा पुल खड़ा है तो आधा पुल ही होगा, पूरा पुल नहीं होगा। BRT पेशावर की नहीं चलेगी, कराची की ट्रेनें नहीं चलेंगी, कराची के बसें नहीं चलेगी, क्योंकि पैसा नहीं है। जैसे ही पैसे की ग्रोथ होती है ना, फिर आदमी हर चीज का हलचल करता है। ठीक है, मैं हमेशा मुशर्रफ के टाइम को क्यों अच्छा कहता हूँ कि वो फील गुड एलिमेंट था। डॉक्टर अजीज का उन्होंने नाम लिया, असल में वो मुशर्रफ के टाइम था, फील गुड एलिमेंट। अच्छा, मैंने जफर भाई प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ बढ़ना, लेकिन एक सवाल है, बैरूनी सरमायाकारी में 25% इजाफे का टारगेट, आप समझते हैं कि ये हकीकत पसंदाना है? ऐसा मुमकिन हो पाएगा? अगर आपकी करेंसी स्टेबल हो गई, इंटरेस्ट रेट लो हो गए, उनको नजर आया कि कमाने का चांस है, इंडस्ट्रियों के साथ उनको एतबार हुआ कि इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ उनके पैसे डूबेंगे नहीं, जैसे मोदी ग्रुप के साथ लुफ्थांसा बैठा था अमेरिका इंडिया में, जैसे टाटा के साथ सुजुकी बैठा था, इस तरह इंडस्ट्रीज के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जापानीज, वियतनामीज, मलेशियन वो बैठेंगे और उनको लगेगा कि यहाँ के लॉज ऐसे हैं तो उनके पैसे डूबेंगे नहीं, तो 100% होगा। लेकिन आपको ये दिखाना होगा कि हम तैयार हैं बिजनेस के लिए। आज भी हम लोग अच्छे इंडेक्स पर आए हैं बिजनेस की ईजनेस पर, तो अभी भी 108 नंबर पर है, हमें इसको 40-45 नंबर पर लाना पड़ेगा। ठीक। बहरहाल हमने कोशिश की मौजूदा बजट पे पाकिस्तान के मायनाज़ कारोबारी शख्सियात हो, माहिर मुआशियात हो, इन सबको हमने शामिल किया। इब्तिदा में हमने कोशिश की कि जो हमें बेहतर लगा इस बजट के अंदर वो हम आपके सामने रखें, लेकिन क्या सजेशन हो सकती थी, क्या होना चाहिए था, इससे मुतालिक हमें आगाह करते। जफर मोती वाला साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।